Hi all, good afternoon. Welcome to the Art Talk again. As all of you know that the Art Talk is organized by the Sneha Arts, and Sneha Arts is run by Dr. Snehalata Prasad. She's also a famous sculptor, and she runs the leading gallery for art in South India, based out of Hyderabad. And Dr. Snehalata Prasad is also believes that we should get art together, and do some of these talks to encourage the artists. So today we have a special guest, Mr. Siddharth, who is joining in today. He is an eminent artist. What's so different about this particular artist? I really got inspired after studying about what he does. He uses natural art. Okay, he basically works on a specific art for years together, like almost 7 to 8 years on a single theme until he finishes the complete work on that particular thing. He actually, from being from the Sikh family, he took Buddhism, and he was a monk for almost until his 42, I think almost till 40 years. And then he does these large paintings, which are large size, starting from 6 feet to 18 feet large size. And one of the unique things which he learned from his family, his mother, is that using natural color. So he knows which vegetables, which greens can give the color which he can use in his art, and he is very particular about what he uses as the ingredients, for his art. One of the best things is he's set a mark in the industry that all his art gets booked 10 years in advance. So all the people who are waiting for his art has to wait for like a decade to ensure that he gets to their work. And some of his most famous journeys or achievements have been his work towards Ganga. We'll talk about it, and we'll ask Sir how this particular journey started. So thanks a lot, sir, for joining in. It's an honor having you here. And from Sneha Arts, we really welcome you for this particular show. There are a lot of artists here who are watching this, new artists, budding artists, artists who are already making their mark. But everybody wants to learn from you because आपका story थोड़ा हटके है, where you have explored everything which your दिल से जो भी दिल चाहा वो आपने कर दिया, whether it is like living into a different world, living in a different religion. You've explored everything. So maybe you can talk about what art you're working on, and then we'll hear your story and your journey. So over to you, sir. First of all, thank you very much, Sneha Art and Raviji, to you. And thanks to everybody whosoever joined us now at this moment and found time to be with us. So thank you very much all. Thank you. And about my story, I always say my life is a story. I see myself as a story, like, because ये बहुत यात्रा ऐसी है कि कहाँ से चली और कहाँ कहाँ जा रही है, और मैंने कभी अपने को रोका भी नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा। अगर हो गया, जो हो गया, तो उसको यस कहा। उस यस में बहुत लंबा रास्ता चलते हुए और बहुत खुशी से, बहुत प्यार से और बहुत ही अपने किस्म की साइलेंस और सुंदरता से मैं अभी तक अपना काम करता हूँ, अपने स्टूडियो में बैठा हूँ अब तो। टिल द एज ऑफ 42 तो मैं बहुत जगह जगह घूमता था, कहीं एक जगह भी टिका नहीं। परंतु अब काफ़ी समय से, जब से मेरी बेटी और मेरी पत्नी मेरे साथ है, तो मैं अब एक ही जगह पे दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में स्थित हूँ। मैं गांव से चला था, 14 साल की उम्र में निकल गया था अपने गांव से, अपने माता पिता को छोड़ दिया था। और पहले मैं अपनी माता जी से सीखता था। मेरी माता वेजिटेबल डाइज बनाती थी और उससे वो बेल बूटा करती थी, हम बेल बूटा कहते हैं उसका। उससे वो डेकोरेशंस करती थी अपने पेपर मेशी के बर्तनों पे और दीवारों पे, और कई तरह की आर्ट को करती थी, अपने गुजारे के लिए करते थे हम लोग, हमारा गुजारा उससे था। मैं अपनी माता को देखा रंग बनाते हुए, अपने पिता को सुना गुरबानी के गीत गाते हुए, और मेरा जन्म भी गुरुद्वारे में हुआ, तो इसलिए मेरा इस तरीके से बचपन इस तरीके से बीता कि मैं गुरबानी गाते हुए बड़ा हुआ खुद भी,
और पिता को सुनता था हर रोज। और उसमें हिंदुस्तान के सभी बड़े संतों की गुरबानी हम लोग सुनते थे, सुबह 3:30 बजे से लेके 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, लगभग सारा दिन गुरुद्वारे में। और बाबा की साखियाँ, गुरु नानक की साखियाँ, और कबीर जी के दोहे, और यहाँ तक के बंगाल से जो हमारे जयदेव जी, उनका रविदास जी, इन सब की बानी के साथ हम बड़े हुए हैं। और साथ में मेरी माता की क्राफ्ट, क्योंकि उससे हमारे घर का गुजारा चलता था। फिर वहीं से मैं एक वहाँ के लोकल क्राफ्ट्समैन था, उनके साथ असिस्टेंट हो गया था। व्हेन आई वाज ओनली इन 5th-6th क्लास, तो मैं उनके साथ असिस्टेंट हो गया था और मैं फ्रेस्को सीखता था। वहाँ से फिर मैं 14 साल की उम्र में जब मैं 9th पास किया, तो शोभा सिंह जी वहाँ के बहुत ही बड़े हमारे पंजाब के पोर्ट्रेट पेंटर थे, तो उनके पास जाके मैंने अंधरेटा में सीखा, पोर्ट्रेचर पेंटिंग सीखी ऑयल में। वहाँ से मुझे तिब्बतन मॉन्क्स मिल गए और मुझे लगा कि नहीं, दिस इज माय प्लेस। मैं जब पहली बार वहाँ पर गया, तो देखा मैंने बुद्ध की आंखों में झुकी हुई सी स्माइल, उसकी बहुत प्यारी सी, नीला सिर और इंडिगो कलर का उसका बाल थे, सिर था उसका, और गोल्डन चेहरा, आधी खुली आंखें, और जैसे एक बहुत ही खूबसूरत कोई बैठा है, मैंने देखा पहली बार। मुझे लगा जैसे वो पूछ रहा हो कि जानते हो क्या तुम मुझे? मैंने कहा हाँ, जानता हूँ कि नहीं जानता, सिर्फ यही जानता हूँ कि नहीं जानता। और आज भी मैं तुम्हारे साथ कला की बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, परंतु जानता हूँ कि कुछ नहीं जानता। बस इतना कि एक रास्ता है, बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाने की एक इच्छा है, बस उसको निभाते हैं। और इस तरीके से लामास के पास मैंने रह के थांका पेंटिंग सीखी और उसकी थांका की टेक्निक सीखी, फिर वेजिटेबल डाइज एंड मिनरल पिगमेंट्स, उनको बनाना, कैनवसेस को बनाना, कपड़े को बनाना, पेपर को बनाना, ये सारी विद्या है। और साथ के साथ जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है मेडिटेशन उनका, जो एक लाइफ स्टाइल है। फिर वहाँ के डॉर्जी और पद्मा संभव के साथ रहना शुरू, जो मिलने का मौका हुआ, तो उनका एक जो रहना ही उनके साथ, समझिए कि आपके साथ एक खूबसूरती हो सकती है, उनकी एक, उनका जीवन ही कुछ ऐसा है। तो इस तरीके से आज मैं यहाँ सारी यात्रा करता हुआ फिर यूरोप के देशों में एक मॉन्क की तरह घूमता रहा। बहुत समय स्वीडन में रहा, बहुत वहाँ पर ग्लास ब्लोइंग से लेके वहाँ की जो आर्ट की टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी सीखते हुए यूरोप की, अफ्रीका की और कई जगह की सीखते सीखते मैं यहाँ पर हूँ दिल्ली में। और दिल्ली भी एक बड़ी खूबसूरत जगह साबित हुई मेरे लिए कि इसने मुझे पहचान ही लिया अल्टीमेटली, और मुझे बहुत, मेरा जीवन अच्छा, सुखद और सुंदर किया है। मैं धन्यवादी हूँ मेरे उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे चित्रों को पसंद किया और खरीदा भी। आज मेरी मेरी जब मेरा एंजॉयमेंट का पेमेंट सारी दुनिया करती है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये चित्र करना हमारा एंजॉयमेंट है, ये हमारा अपना पर्सनल मसला है, हम अपने लिए करते हैं। परंतु यहाँ पर वो खूबसूरत लोग आ जाते हैं जो आपको पेमेंट करके आपको खुशी दे जाते हैं, आपका जीवन भी चलता रहता है। साथ के साथ वो अपनी उस तरीके की खुशियाँ ले जाते हैं, कुछ दे जाते हैं। तो मैं धन्यवादी हूँ उन सब का भी। जी। सुपर। तो ये आपने मतलब ओरिजिनलिटी, जो कलर्स आप यूज़ करते हैं, नेचुरल कलर्स, ये मतलब सस्टेनेबल है, मतलब ये बहुत दिन रहते हैं, क्यों चूज़ किया आपने नेचुरल कलर्स को ही, क्यों आपने इम्पोर्टेंस देने की? जी, ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये आपकी अपनी इच्छा है, आप क्यों नेचुरल रंगों से काम करते हो, ये आपकी अपनी इच्छा है। यहाँ अब तो सारे तरह के रंग मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, इनऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक भी सब मिल जाते हैं आजकल। पहले नहीं मिलते थे, शुरू में जैसे हम गाँव में थे तो नहीं मिलते थे, वहाँ से सीखा।
परंतु बड़ी खूबसूरत बात लगती है जब अपने रंग आप लेके आते हो। उनकी अपनी हजार कथाएं होती हैं। जब आप उनके एक फूल के पास जाते हो, अब जब एक पेड़ के पास जाते हो, जब एक फूल को चुनते हो, जब फूल आपसे बात करता है, एक टहनी आपसे बात करती है, एक बीज आपसे बात करता है, एक पत्थर आपसे बात करता है, आप उसको ग्राइंड करते हो। कहाँ कहाँ के पत्थर, कहाँ कहाँ की पत्तियां, कहाँ कहाँ के फूल। कितनी खूबसूरत है ये संसार। ये सब आपके साथ बात करता है। हम्म। चित्र तो बाद की बातें हैं ना, पहले तो रंग बनाए ना। पहले तो रंग की बात, ये मेरी अपनी चॉइस है। ऐसा नहीं कि जो लोग ये नहीं करते वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं है। दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, मे बी बेटर देन मी समटाइम, ऑलवेज आई विल से। अच्छे ही होंगे, सभी अच्छे हैं, सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। परंतु जो मेरा अपना प्रेम है एक रंग रंग का, वो क्या है? मैं रंग चुनने जाता हूँ, रंग मांगने जाता हूँ। ये कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ, मेरी मदर से मैंने सीखी थी। रंग मांगना, हम्म। पेड़ से, फूलों से रंग मांगना उनसे सीखा हमने। फिर रंग बनाना अपने घर में बैठ के। फिर उसके बाद जब मैं तिब्बतन मॉन्क्स के पास गया, तब तक मुझे सिर्फ 6-7 सोर्सेस का पता था कि जहाँ से मुझे वो रंग मिल सकता था। तो उनके साथ रह के मैंने लगभग 35-40 रंगों के बारे में मुझे पता चला, सोर्सेस के बारे में पता चला कि कहाँ से मैं रंग प्राप्त कर सकता हूँ, पत्थर से, मिट्टी से, कई तरह की चीजों से। पर आज माय फ्रेंड्स, आई विश टू tell you, wish to share it with you, that now at this moment I know more than 600 sources which I discovered. Because जब भी मैं कभी पहाड़ में जा रहा हूँ या जंगल में जा रहा हूँ, जहाँ कभी ट्रैक कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, तो पौधे और पत्थर और ये सब मेरे से बात कर। कैसे करते हैं? चलो एक कथा सुनाता हूँ छोटी सी, प्लीज। बड़ी खूबसूरत कथा है। हम लोग बर्मिंघम में थे एक बार। तो एक पत्ता उड़ता हुआ आया, मैं एक ट्रेल पे चल रहा था, मेरे पीछे कुछ और आर्टिस्ट भी थे, मेरे पीछे 6-7 हमारे आर्टिस्ट थे, मैं आगे था ट्रेल पे। बड़ी खूबसूरत ट्रेल थी। इधर नीचे बहुत गहरा था, एक तरफ जंगल था बहुत सुंदर। और एक एक कदम रखते हुए जब हम चल रहे थे, तो मेरी आदत है कि मैं ओम मणि पद्मे हूँ का जाप करते हुए चलता हूँ, एक एक कदम के साथ। ओम मणि पद्मे हूँ, और नीचे देख के चलते हैं। गुरुजी ने कहा था कि अपने पाँव को देखकर चलते रहो, आप अपने गंतव्य पे, अपनी जगह पे अपने आप पहुंच जाते हो। धरती तुम्हारे पाँव के नीचे चलनी शुरू हो जाती है, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, हम्म। और आप पहुंच जाते हो। तो वो जैसे ही मैंने अपना लेफ्ट फुट जैसे ही रखा ओम करके, तो एक पत्ता आया छोटा सा उड़ता हुआ, रेड कलर का पत्ता था। वो जैसे मेरे पाँव के नीचे आने वाला था, मैंने उसको उठाया, पूछा, अरे भैया, वाई, मेरा पाँव क्यों चूज करा? मेरे पैर के नीचे आना ही क्यों चूज किया तुमने? फिर मैंने देखा कि कौन सी दिशा से उड़ के आया, तो मैं उस तरफ को चल दिया, और मेरे पीछे मेरे दोस्त भी चल दिए। हम आगे, थोड़ा सा ही आगे जंगल में गए, इनसाइड जंगल में गए, तो एकदम हरा मैदान, और तभी तभी सुबह की धूप निकली थी। उस पे हर एक घास के ऊपर एक एक बूंद चमक रही थी, जैसे सूर्य उतर आए हो, कितने हजारों लाखों ऐसे चमक रहे थे। छोटे छोटे ओस की बूंदें चमक रही थी, ऐसी खूबसूरत, जैसे वो स्वयं ईश्वर, स्वयं सूरज उतर के नीचे आ गया था घास पे। और बीच में, बिल्कुल बीच में, उस मैदान में एक पेड़ खड़ा था, जिसको रेड बॉक कहते हैं, जिसके लाल पत्ते होते हैं। ये बिल्कुल हमारे बड़ की तरह का पेड़ है। उसको देख के सभी लोग हैरान हुए, सभी आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, तो सभी बहुत खुशी से बैठ गए बस एक ही जगह के। ऐसा नजारा, ऐसी कुदरत, ऐसा सुंदर ईश्वर हमने नहीं देखा कभी भी। और वो पेड़ के पत्ते गिरे हुए, जैसे अपनी कारपेट, रेड कलर की कारपेट के ऊपर एक रेड कलर का पेड़ खड़ा हुआ है, वाह। और आसपास सारा हरा, और उसके ऊपर लाखों सूर्य चमक रहे थे। ये अपने आप में एक कथा थी, अपने आप में एक चित्र था, अपने आप में ये बियॉन्ड वर्ड्स था।
फिर मैंने गीत गाना शुरू किया उसका, मैं गीत गाया फिर हमने, बहुत एक बहुत सुंदर था। तेरी एक सुर लंबी है, सुनदा रहा सारी रात, सुबह सवेरे मोती बन बन घाते विशी पई सी ओ तेरी हेक। मीन्स, oh my God, I was listening to you the whole night. I was listening to your swara whole night. And in the morning I saw you became a pearl on the grass. Mhm. This is the meaning of this song. So I was singing this song and then sang a song for the red tree as well. Then I collected some leaves and then I chew sometime, this is my habit. Because हमारा जो saliva है उसके अंदर 64 मॉडरेंट्स हैं, ओके। केमिकल्स हैं, तो उनके साथ मिक्स होके किसी ना किसी केमिकल के साथ वो पता चल जाता है कि कौन सा रंग है ट्री का, पत्ते का। तो वो जब मैं उसको च्यू कर रहा था तो एक मेरा दोस्त बोला, अरे तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। क्या खून नहीं है बच्चे, दिस इज ब्यूटीफुल रेड कलर। देन वी ऑल कलेक्टेड दोस लीव्स जो नीचे पड़े थे, हम ले गए अपने साथ, और उसके अंदर फिर मैंने एक मॉडरेंट डाला जो मैं सदा अपने साथ रखता हूँ। बहुत सारे मॉडरेंट्स अपने साथ किसी भी ट्रैक पे, किसी भी जगह पे अपने बैग में रखता हूँ थोड़े थोड़े। उनको मिक्स किया, उस कलर को मिक्सी में चलाया, पत्तों को पानी डाल के उसके अंदर थोड़ा वो मॉडरेंट डाला, फिर हॉट वाटर डाला, उससे कलर बनाया। फिर हम सभी आर्टिस्टों ने उससे पेंट किया। इतना खूबसूरत समय हमारा निकला वो वाला के। उसके बाद फिर हमने 2-3 रंग और भी वहां से। आप मुझे कहीं भी ले जाइए, मेरे लिए रंग तैयार है, मुझे कोई किसी रंगों की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है, और पेपर तक भी की भी जरूरत नहीं पड़ती है असल में। जब हम गंगा का जिक्र करेंगे तो आपको मैं पेपर की बात भी करूंगा, क्योंकि कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो बार्क देते हैं बड़ी खूबसूरत, जिसपे हमारे महर्षियों ने लिखा, चित्र किए, उसको भोजपत्र जिसको कहते हैं, और इटली में पेपरासी कहते हैं। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो ये सभी चीजें जो हमारे आजू बाजू में किचन में है, वेजिटेबल्स में है, भी है ऐसा हमारी ऐसा। हल्दी से 6 रंग बनते हैं। हाँ, मतलब ये तो है। जो ऐसा कौन सा रंग है या कौन सा वेजिटेबल है जो हमारे लिए सरप्राइज होगा कि इसमें से भी कलर निकलता है, वैसा जी जी, कुछ है? आप अनार तो खाते ही होंगे, हाँ, पत्ता अनार अनार खाते हैं तो उसमें। उसका जो ऊपर का छिलका रह जाता है, सुना? हम्म। छिलके को आप बॉयल कीजिए, किसी अल्मीनियम के बर्तन में कर लीजिए, लोहे के बर्तन में मत कर लो, अल्मीनियम के या कांच में उसको कीजिए। तो उसका जब वो बॉयल हो जाएगा तो उसमें लाइट येलो कलर निकलेगा। उसके अंदर आप थोड़ी सी जो फिटकड़ी लोग लगाते थे ना जब शेव करने के बाद, वो हम्म। थोड़ी सी उसके अंदर मिलाइए, तो जो येलो कलर आपकी पीछे दीवार पे इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो क्रोमियम येलो है ऑलमोस्ट, क्रोमियम येलो विल बिकम द कलर वाटर कलर। वाह। अच्छा, उसको हम सुखा लेते हैं, जब उसको उसका क्रिस्टल बना लेते हैं तो उसके अंदर हम एग टेम्पेरा भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, फिर किसी भी मीडियम के साथ हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके अंदर अगर आप लोहा डाल दें थोड़ा सा उसी कलर के अंदर, तो जल्दी निकाल ले तो ग्रीन कलर हो जाएगा, जैसा पत्तों का है आपके पीछे, ऑलिव ग्रीन जिसको कहते हैं, वैसा वाला बन जाएगा। अगर आप लोहा में रख के ज़्यादा समय उसको बॉयल कर देते हैं लोहे की कढ़ाई में या लोहे के बर्तन में अनार के पत्तों को, तो ब्लैकेस्ट ब्लैक, व्हाट यू कॉल इज ब्लैकेस्ट ब्लैक। ये हमारे यहाँ एंशिएंट तरीका था रोशनाई बनाने का। तो उससे जो फट्टियों पे लिखने के लिए, किताबों में लिखने के लिए जो सब लोग लिखते थे, वो काला रंग बन जाता है। फिर रेड भी बनता है, उससे ऑकर बनता है, रेड ऑकर बनता है, और बर्न टम्बर बनता है। थोड़ा सा सोप लगाना होता है येलो में सुपर। थोड़ा सा सोप लगा दीजिए, हल्का सा हाथ धो के उसके अंदर हाथ धो लीजिए बस, तो दैट विल बिकम रेड ऑकर। वाह। थोड़ा और ज्यादा करने से बर्न टम्बर एंड बर्ड साइना बन जाएगा। तो उससे 8 रंग बनाते हैं। तो जो छिलका हम लोग फेंक देते थे, जी इंक्लूडिंग आर्टिस्ट, उसमें। तो ये अपना अपना मजा है। जैसे मैं आई पीपल कॉल मी अल्केमिस्ट, तो मेरी जो, जब आप मेरे स्टूडियो में आएंगे तो लैब
इतनी बड़ी लैब मिलेगी आपको, सारा दुनिया भर का, और दुनिया भर के कैनवस बनाने के तरीके, मटेरियल। मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत आनंद आता है इस विषय में डिटेल में जाने का, कि कहाँ का रंग, कहाँ की मिट्टी मेरे पास है, और एक रंग की, एक मिट्टी की, एक कथा की, एक रंग की कितनी कितनी हजारों हजारों कथाएं। मैं तो आपको हजारों कथाएं सुना सकता हूँ। आई हैव रिटन अबाउट 225 स्टोरीज अभी पिछले दिनों में। Yeah, I heard that. 225 stories, 10,000 arts till date. हाँ जी And हाँ, तो मैंने लगभग 10,000 के करीब पेंटिंग किए हैं अभी तक। उस हिसाब से पर डे 5-6 बनती हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर ग्रेट वर्क, आई एम डूइंग, नो नो नो, आई एम नॉट अ ग्रेट पेंटर एट ऑल। माय पेंटिंग्स आर ब्यूटीफुल, माय कलर्स आर ब्यूटीफुल, नॉट मी एट ऑल। तो वो ग्रेट वर्क नहीं कहता, ना मुझे ग्रेट वर्क क्रिएट करने की कोई इच्छा है। और मैं दोस्तों से भी कहूँगा, सबसे, यंगस्टर्स को भी, नहीं, कभी कोशिश मत करना कोई ग्रेट वर्क क्रिएट करने की, नहीं होगा। क्योंकि जितना एक्सपेक्ट करोगे रंगों से, अपने आप से, अपने को भी माफ कर दो, अपने रंगों को भी माफ कर दो, अपने कैनवस को भी माफ कर दो, बस बस खुशी से कर लो जो बनना है, खुशी से कर लो, अपने को माफ करना सीख लो थोड़ा सा। हम पेंटर लोग अपने को माफ नहीं करते हैं ना, कई बार बहुत पेन ले लेते हैं, इतनी पेन ले लेते हैं पूछिए मत। सिर दर्द हो जाता है, दुख बन जाता है हमारे अंदर। हम इतना काम क्रिएट करके फिर सोचते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कोई खरीद के ले जाए ना, फिर नहीं कोई खरीद के ले जाता तो हम रोते हैं बैठ के, है ना, फिर हम बड़े बड़े गिले करते हैं। ज्यादा खरीद ले तो हम बड़े ऊंचे चढ़ जाते हैं, हमारी बड़ी अकड़ें होती हैं हम आर्टिस्टों की, है ना। तो मैं सदा कहता हूँ, माफ कर दो अपने को भी। सेल्फ को माफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। And do not expect from yourself, do not expect from your painting also. Then see how God will give you everything. Certainly will give you something great, something, वो इतना सुंदर दिखाएगा आपको। सुबह सुबह आता हूँ मैं अपने स्टूडियो में, मैं कहता हूँ अपने आप को, अपने चित्र को, अपने रंग को, अपने ईश्वर को, आज कुछ अच्छा दिखा देना, आज कुछ सुंदर कर देना। और वो दिखाई देता है, कुछ ना कुछ सुंदर दिखाता है। मुझे फेथ है बहुत है, अपने पे भी और अपने दोस्तों पे भी, मेरे गैलरी वालों पे भी, मेरे बायर्स पे भी, मेरे आर्टिस्टों के ऊपर भी। और आर्टिस्टों के बारे में बात बताऊं, बड़े खूबसूरत लोग हैं। बाहर से बेशक लड़ते रहे, बुरा भी बोलें, कुछ भी करें, पर जब अच्छा देखते हैं तो अंदर खाने अच्छा कहते हैं। नहीं रुका जाता उनसे, अगर वो आर्टिस्ट है तो वो फिर प्रेम करते ही करते हैं आपको, और मुझे बहुत प्रेम करते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीबॉडी। श्रद्धा से और एक ऐसे भाव से भरे रहना कि आप भरे पूरे रहें बस हर वक्त, तो वो खूबसूरती है, यही सीखी है हमने। सर, आप जब पेंटिंग करते हैं तो आप नाड़ी योग में रहकर करते हैं, मतलब जब करते हुए करते हैं, ये कब शुरू हुआ और क्यों करते हो वैसे? ये तो शुरू से करते हैं हम लोग। जैसे जब लामा जी के पास था मैं, पहले तो मैं अपने गांव से ही शुरू करता हूँ ना, क्योंकि जब हम गांव में थे तो हम तो गुरुद्वारा में थे। मैं तो गुरुद्वारा में पैदा हुआ बच्चा हूँ ना, तो हर वक्त हमारे यहाँ बाणी चलती थी, तो हमारे पिताजी हर वक्त गाते रहते थे कुछ ना कुछ, तो उनके साथ बैठे हुए हम चित्र कर रहे हैं। मेरी माता जी गाती रहती थी, गुरबानी गाती रहती थी। हमारे यहाँ हर वक्त गुरबानी का पाठ चलता रहता था। और आज मुझे भी गुरु ग्रंथ साहिब में से आप कहीं से भी मुझे शुरू कर लीजिए, मैं गाना शुरू कर सकता हूँ, गुरबानी गाना शुरू करता हूँ। आपको पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में 15 संतों की बानी है, जो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जगह से हैं, जिसमें कबीर जी, रविदास जी, पीपा जी, साउथ से हमारे रामानंद जी, और बंगाल से जयदेव जी, और सो एंड सो फोर्थ। ये महाराष्ट्र से भी है नामदेव जी और सब लोग। देन सिख गुरुओं की 6 सिख गुरुओं की बानी है, 15 और 6 हो गए हमारे लगभग 21 ना। और फिर 15 भट्ट हुए हैं, 15 भट्ट हुए हैं, जो बहुत खूबसूरत लोग थे, बहुत अच्छा लिखते थे, गाते थे, उनकी बानी है। और 3
जिसमें भाई मर्दाना जी जो रबाब बजाते थे उनकी भी बानी है। तो ये सारी हमको कंठस्थ है। तो हमारा तो पाठ वहीं से, घर से शुरू हुआ। वाहेगुरु का जाप शुरू हुआ सुबह 3:30 बजे से शुरू होकर रात को 9 बजे तक चलता था। फिर जब मैं लामा जी के पास गया तो वहां तो जब हमने पत्थर रगड़ना है तो पत्थर रगड़ते हुए भी ओम माने बाद में ओम। पेंटिंग करते वक्त हमारे 3-4 जाप होते थे जो हम लोग करते थे अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह की पेंटिंग के साथ। जैसे ओम तारे तू रे सोहम, और ये वाला पाठ था एक ब्रेथ लेके पूरा नाभि तक, उसको हम एक ब्रेथ से गाते हैं और एक ब्रेथ से 16 बार गाते हैं। एक ब्रेथ से 16 बार गाते हैं। ओम तारे तू रे सोहम, ये 16 बार एक ब्रेथ से। तो हमारा 60 सेकंड का ब्रेथ होता है लगभग, उसी हिसाब से चलते हैं उस सिंक्रोनाइजेशन। तब पेंट कर रहे होते हैं बहुत धीरे धीरे, बहुत आनंद आता है कंप्लीटली उसमें लग के। मंत्र जाप से क्या होता है, आप टिके रहते हो एक जगह, आपके अंदर एक श्रद्धा, आपके अंदर एक बहुत खूबसूरती आ जाती है। आप चाहे कोई भी शब्द गा लें, कोई जरूरी नहीं कि आप धार्मिक हो और मंत्र गाएं, नहीं। आप चाहे कोई एक गीत गा लें, कोई भी गा लें, आप यही कह लें मैं प्यार करता हूं तुमको, ऐसा कह लो, क्या फर्क पड़ता है। अपने प्यार में खो जाओ ना, अपने चित्र में, अपने रंग में, उसमें चले जाओ, कोई बात नहीं। आप कुछ भी कह लो आप, है ना। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू नीड नॉट बी रिलीजियस दैट वे, है ना। तो आप कोई भी एक शब्द लेके आप उसको फोकस कर लो। दिस इज माई वे, आई एम नॉट सेइंग यू एवरीबॉडी शुड डू इट, नो नो। सबका अपना अपना तरीका है। कोई अपने ब्रशों के साथ चलता है, उसके साथ बहता है, अपने रंगों के साथ बहता है, कोई कैसे, अपना अपना तरीका। परंतु हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि एक्सपेक्ट नहीं करो अपनी आर्ट से, ना अपने आप से, तो खुशी और सुंदरता, और चित्र भी बहुत सुंदर होने वाला है। हाँ जी। So ये आपने बेसिकली 2 जर्नी की है, आई मीन स्पेशली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रिलीजन, सिखों के साथ, देन यू बीन टू तिब्बत एज अ मॉन्क। ये 30 लैंग्वेजेस कहाँ से आपने 13 where- लैंग्वेज। हाँ जी। लैंग्वेजेस का क्या है कि मुझे बहुत मजा आता है लैंग्वेजेस सीखने का। मैं हर साल कोई ना कोई नवी नवी लैंग्वेज में चला जाता हूँ। जैसे अभी अंग्रेजी में जा रहा हूँ, अभी अंग्रेजी में मैंने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसके लेसन्स लेने शुरू कर दिए हैं। अब जब लंदन जाऊंगा तो प्रॉपरली लूंगा, तो फिर देन आई विल बी स्पीकिंग रॉयल इंग्लिश, है ना। देन व्हाई नॉट, इफ यू लर्न प्रॉपरली, देन ना। तो तब आपको रॉयल इंग्लिश सीखनी चाहिए। आप जैसे मैं ईरान गया, 7 दिन रहा वहाँ पर, 8 दिन। तो पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर 4 लैंग्वेज है ऑलरेडी है। अगर आप पंजाबी बोलना जानते हैं तो आपको 4 और 5 लैंग्वेज आपको अपने आप ही आ जाती है, अपने आप। जैसे कि पाली, प्राकृत, पश्तो और पहलवी, जिसको हम पर्शियन कह देते हैं अभी आजकल, है ना। तो उसके अंदर पहलवी पर्शियन है, पूरी तरह से है भरी हुई। और संस्कृत भी अब तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हुई हुई है इसका, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान की जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज थी संस्कृत, तो हमारे 5वें गुरु साहिबान से फिर 5 संस्कृत का मिक्सचर शुरू हुआ। तो ये सारी लैंग्वेज आपको आती है। फिर आपका एक अपना, जैसे मैं ईरान में गया, मैं जैसे शुरू किया तो 7 दिन में, 8 दिन में, धीरे धीरे सुनते सुनते लगा कि मैं तो समझता हूँ इनको अच्छी तरह से, ये लैंग्वेज तो मैं जानता हूँ, क्योंकि उसके अंदर लगभग हमारे 50% वर्ड्स आर फ्रॉम पहलवी, पर्शियन, पंजाबी के अंदर। तो हमें वो आते हैं, डिक्शनरी तो आती है। अब रह गया एक्सेंट, अभी रह गया उसका डिक्शन का तरीका। वो जब आप अपने कुछ प्यारे दोस्तों के साथ होते हैं ना, फिर समझ जाते हो, है ना। जब बड़े प्यारे दोस्तों के साथ होते हैं, कुछ ज्यादा प्यारे दोस्तों के साथ। So, इतने सारे कंट्रीज, मतलब कहाँ कहाँ गए, और कौन तो सा मैं कंट्री बहुत आपको? इस वक्त 3-4 कंट्री ऐसे बचे होंगे जिनमें नहीं गए, वो भी डेलिबरेटली नहीं गया हूँ, क्योंकि जाना नहीं चाहता मैं। Okay. तो which was close to your heart? कौन सा बहुत पसंद आया? Close to my heart was Istanbul, Turkey, Sweden and Japan. ये 3 कंट्री मेरे बहुत क्लोज मन में है, बहुत ज्यादा।
ऑफ कोर्स हिंदुस्तान तो है ही हमारा, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है हमारा देश। बहुत वैरायटी है यहाँ पर, सुंदरता भी है हर तरह की, सारी सुंदरताएं। परंतु जो इस्तांबुल की लोगों की सुंदरता है, जो एस्थेटिक है, जो जापान के लोगों की सुंदरता और एस्थेटिक है, वो उसका मैच नहीं है कहीं पर भी सारे वर्ल्ड में। देन स्वीडन इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स। आपको पता है आज भी वहां पर दुकानों पे, घरों पे लॉक नहीं लगता है स्वीडन के अंदर। आज भी लोग फेथ करना जानते हैं, आज भी लोग बड़ा प्यार करना जानते हैं वहां पर। उनका कोई रीजन ही नहीं है कि आपके ऊपर फेथ ना करें। वो कहते हैं व्हाट रीजन वी हैव नॉट टू हैव फेथ ऑन। हमारे पास कोई रीजन नहीं है, आपस में भी उनका ऐसा नहीं। मैंने देखा लोग भी थोड़े से हैं। वो एक बच्चा भी पैदा हो जाता है स्वीडन में तो समझिए कि न्यूज़पेपर की न्यूज़ में, नेशनल न्यूज़ में उसका स्थान होता है। एक बच्चा पैदा हो गया फलां जगह पे। ऐसी वैल्यू है, मतलब ह्यूमन की तो है ही वैल्यू है वहां पर, पत्तों की, घास की, पंछियों की, जानवरों की, किस किस की बोलूं, पत्थरों तक की। वहां वैल्यू है हर चीज के ऊपर। अपने स्वामी हैं वो लोग और ऐसे चलते हैं बिल्कुल, कहते हैं स्वामी मालिक भी हैं अपने स्वयं के, और ऐसे भी चलते हैं कि जैसे बहुत छोटे हैं इस प्रकृति के अंदर। एक ये भाव भी है उनके अंदर, और ऐसा होना ही चाहिए। हमारे गुरुजी भी यही कहा करते थे, हमारे बुद्धिस्ट और ये भी हमारे यहाँ हिंदू शाइवाइट सिस्टम में भी यही था कि अपने स्वामी हो जाओ और ऐसे चलो इस धरती पे कि देखें आपको लोग कि कोई स्वामी अपना मालिक आ रहा है, ये है अपना मालिक कोई। परंतु इतने निमाने, इतने छोटे बन के कि इस प्रकृति में तुम हो ही क्या, एक छोटे से बिंदु, ऐसा भाव लिए हुए चलना इस धरती पे। अपनी जो हमारे फेलो बीइंग्स हैं, फेलो बीइंग्स हमारे पेड़ पौधे, घास, हम तो घास पे ऐसे चलते हैं जैसे हमारी मालकियत होगी ना, हम ऐसे रौंदते हुए चलते हैं। हम तो फूलों को ऐसे तोड़ लेते हैं हर रोज, जहाँ मन किया वैसे कर लेते हैं। ऐसी चींटियों के साथ, जानवरों के साथ, सबके साथ। इंसानों की तो बात ही मत पूछो, बैर विरोध से इतने भरे हुए हम लोग। खूबसूरत है फिर भी, चलो ठीक है, अच्छा है, इंसान है ना, बुरे हैं चंगे हैं जो भी है। अब कोरोना ने बता दिया ना क्या हो तुम। कोरोना ने समझा दिया क्या हो तुम। सही है। अब समझ गए ना कि ये लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, नॉट एनीथिंग एल्स, लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सर जब आप ट्रैवल करते हो, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवल, यहाँ पे तो बहुत लोग आपको जानते होंगे, सो तो कैसा लगा, मतलब लोगों को आपको देखते ही विद वे यू ड्रेस अप, मतलब विद द किट, आपका जो एक्सेसरीज है सभी देख के पता चल जाता है कि आप आर्टिस्ट हो, या आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि यार मैं नहीं, आर्टिस्ट हूँ, इंडिया से आया। आप पहचान ही नहीं सकते कि मैं आर्टिस्ट हूँ। जब मैं बाहर कभी इवन यहाँ गैलरीज वगैरह में भी निकलता हूँ तो नो, आई एम सिंपल लाइक यू सर। तो पर थोड़ा सा मैं, हाँ, यस, थोड़ा सा स्पेशल मेरा होता है ना। मेरी जो चॉइस ऑफ क्लोथ्स जो है एक ही तरह की है, पर थोड़ी सी स्पेशल है, नॉट नथिंग एक जैसी है। मतलब कि ऐसा नहीं कि मुझे चूज करना पड़े खड़ा होकर 2 घंटे ना, कोई चीज तो एक ही जैसा है। कई लोग तो ये समझते शायद कोई बाहर आ गया, कोई समझते शायद आर्मी का आदमी है, कोई समझता क्योंकि द वे आई वॉक, यू नो। Business casuals. I've seen you with t-shirts and maybe a jeans or a trouser. या तो वो उस तरीके से बहुत ही contemporary. I'm a very contemporary man that way, you know. I'm very much easy with the technology, the computer technology and everything. I write my softwares as well myself, you know. So I'm very much comfortable with my cameras and editing tables and whatnot. Yes. Wow. I use all the technical possibilities in my art these days. I use them. Like I take photographs and do some sketches and so on and so forth, and then sit on the computer table, on the editing table, and then
I just compose things on Photoshop first and then change my colors and so forth, then take the prints and then see my things, what I'm going to do with it, you know. Then I go with my own hand on the canvas spontaneously from one corner to the other. I'm very fast that way, and I paint very big canvases like running. No, if you like to see sometime, you have to see. We can do it sometimes. No? So I'm fast that way. Not that. फिर मुझे मेरा होमवर्क इतना हो चुका होता है कंप्यूटर पे, मेरी राइटिंग पे इतना होमवर्क हो चुका होता है, ड्राइंग्स इतनी कर चुका होता है कि मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता। कोई पेन तो लेनी ही नहीं ना, सवाल ही नहीं है। पेन नहीं, तकलीफ नहीं, खुशी, बहुत मजा, आनंद ना। फिर तो पेंटिंग को कहना पड़ता है हो जा। So that kind of ease, you know. So we'll play the Ganga series for the friends. Maybe you can describe the journey of Ganga series while I'm playing this particular short, Right, artwork right. of yours. तो मैं गंगा के ऊपर बात करना चाहूँगा। से शुरू किया है काम उसके ऊपर, 2012 में शुरू किया था। परंतु काम तो मैंने पहले भी किया था, जब आई वॉज ओनली 16 ईयर ओल्ड। तब मैंने जब लामा जी के साथ गया था गंगा के इस ओडिसी में, जब हम लोग निकले, तो ये बड़ी कमाल की एक यात्रा थी हमारी, बहुत ही खूबसूरत यात्रा थी। हम उल्टी साइड से गए थे। पहले हम बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ से हमने माना गांव से होते हुए वहाँ वासुकी धारा, वासुकी ताल, ये सब पहाड़ इतने ऊंचे हैं, 15,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई के हैं और ज़्यादा ऊंचे हैं। और वहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है हर वक्त, स्नो रहती है। हम लोग जून के महीने में गए थे, मई के महीने में हम गए थे, क्योंकि तब बरसात नहीं होती, बर्फ़ नहीं पड़ती और टिका हुआ होता है सारा वहाँ का संसार। बर्फ पे चलते हुए हम वासुकी धारा से होते हुए ऊपर से आए थे और हमें 10 दिन लगे थे इस यात्रा को गौमुख पहुंचने में। रास्ते में इतना खूबसूरत था कि ऐसा लगा जब जैसे ही हमने वासुकी ताल देखा, ऐसे जैसे कि आसमान नीचे उतरा, नीला सरलीन किस्म का आसमान, उसके अंदर तैरती हुई सफेद बदलियां, उसके अंदर एक गिरती हुई बड़ी सारी धारा, वासुकी धारा। वासुकी धारा इतनी खूबसूरत, उसका ऊपर को देखो तो नहीं पता चलता था और शोर कोई, कहाँ से आ रही है ये धारा, पानी कहाँ से, ये ईश्वर कहाँ से पानी दे रहा है, कहाँ से फेंक रहा है। हम भीग रहे थे लगभग 10 किलोमीटर तक उस धारा के नीचे, वो इतनी ऊंचाई से ऊपर से आ रही थी। बाद में पता चला कि ये मानसरोवर से उतरती है। ये मानसरोवर से ये धारा उतरती है और नील जो वासुकी ताल में गिरती है। वासुकी ताल के आसपास सारी पहाड़ियां हैं, हमारी बद्रीनाथ की पहाड़ी जिसको हम नीलकंठ बोलते हैं, फिर केदारनाथ की पहाड़ी है बहुत बड़ी वाली, उस लेक के ऊपर है वो भी एक साइड में, और 3-4 पहाड़ और हैं, सबका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है इस वक्त ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म के पहाड़ हैं जिनके बीच में ये एक वासुकी ताल है, बहुत बड़ा, सेकंड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, इतनी ऊंचाई पे जो पहाड़ है मानसरोवर के बाद। वहां से फिर 13 नदियां निकलती है। 13 नदियां जो निकलती हैं उनके अलग अलग रंग हैं सबके, जिनको हम रुद्र गंगाएं बोलते हैं। इतना शोर करती हैं रुद्र गंगाएं कि आपको अपना सांस भी सुनाई देता नहीं। आप आपस में भी बात नहीं कर सकते हो, इतनी साइलेंस हो जाती है और सिर्फ गंगा बोलती है वहां पर, ऊंचे स्वर में बोलती है। तब मैंने उसके साथ ऊंचे स्वर में गीत गाया ना। मैं हर जगह फिर गीत गाया गंगा के साथ साथ, अलग अलग स्थिति में गीत गाया। एरी हवा ले चल मुझे उड़ा के अपने संग, एरी हवा
ले चल मुझे उड़ा के अपने संग, बरसा दे उस पावन शिखर पे फिर से एक झरना बन बहूंगा, चलूंगा समंदर की ओर, फिर से एक बार एरी हवा ले चल मुझे उड़ा के अपने संग, कि ऐसी ऊंचाई पे मुझे ले जाए, इतनी पवित्र जगह, ऐसा पवित्र फिर से एक बार कर दो ना। ऐसी एक प्रार्थना मैंने गाई जोर जोर से उस नदी के शोर के साथ, और धीरे धीरे चलते हम पहुंचे गौमुख। ऊपर से देखा गौमुख, सच में गऊ का मुख लग रहा था। वो 13 की 13 रुद्र गंगा, कोई लाल रंग की गंगा, विश्वास नहीं करेंगे आप, प्योर रेड कलर की, प्योर ग्रीन, प्योर येलो, और मिट्टी मिट्टी के रंग, और फिर कुछ एक बहुत शुद्ध जल की गंगाएं बहती हुई, वो एक गुफा के अंदर नीचे से पीछे से घुस जाती हैं, और उस गौमुख जो एक बड़ा ग्लेशियर है उसके अंदर चली जाती है। और वो इतना गहरा है कि आज तक शायद किसी को नहीं पता चला उसकी गहराई कितनी है, इतनी गहरी है वो, अभी तक विज्ञान उसको नहीं प्राप्त कर पाया, इतनी गहरी है। उसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, उसके जड़ी बूटी का पानी इकट्ठा होता है, उसके अंदर दुनिया भर की जड़ी बूटी, वेजिटेशन, मिट्टी, और कितने किस्म के मिनरल्स उसके अंदर चले जाते हैं। और जब उसके एक छोटे से मुख के द्वार से निकलते हैं, ये 10 किलोमीटर लंबा, ना सॉरी 10 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है, और लगभग डेढ़ एक डेढ़ किलोमीटर का लंबा ये चौड़ाई है उसकी, और आगे से जाके वो बिल्कुल छोटा गौ की तरह मुख हो जाता है, जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर का होगा उसका मुख, और उस मुख से फिर वो गंगा निकलती है, शुद्ध पानी निकलता है। उसको जब हम पीते हैं, जब उसके अंदर स्नान करते हैं, शायद ही कुछ ऐसा पानी देखा होगा संसार में। मुझे तो पता है कि जब मैंने उसको पहली बार पिया था तो मेरे अंदर कुछ हो गया था, मैं वही नहीं रहा था, मैं बहुत सुंदर कुछ हो गया था हमारे अंदर जब उसके अंदर नहाए उस बर्फ जैसे ठंडे पानी के साथ, जब उसको आंखों पे छिड़का था, जब अपने सिर पे डाला था, ये कुछ हो गया था। आपको पता है उसका पीएच लेवल कितना है? 5 to 6 is the pH level of that, one of the That's it. finest on earth. Wow. Then TDS level पता है उसका क्या है? Not more than 40 to 100 उसके बीच में रहता है। बरसातों में 100 के आसपास चले, अदरवाइज 40 and 100। जो हम ये आरओ वाटर पीते हैं आजकल, बड़ा फालतू सा, इट्स डेड वाटर इनफैक्ट, है ना, वी आर ड्रिंकिंग डेड वाटर। Yeah, no minerals, too much filtered. हमारा ठीक कर देते हैं, और उसमें से हमारे मिनरल भी निकाल देता है, उसमें से हमारे, और मिनरल लेवल्स, माय गॉड, जब मैंने उसका एक्सपेरिमेंट्स किए डॉक्टर्स के साथ मिलके, तो एक डॉक्टर को मैंने दिया जो गायनी के डॉक्टर थे, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर हैं, हमारे दोस्त हैं इधर यहाँ, तो उनको मैंने वो पानी ला के दिया। मैंने कहा इसको, इस पानी को और माँ के पेट के अंदर जो पानी है, इन दोनों का मुझे कंपैरिजन चाहिए है। विल यू बिलीव मी सर, व्हाट हैपेंड? इट्स द सेम प्रॉपर्टी वी हैव। माँ के पेट के अंदर जो पानी होता है, जिसके अंदर हम होते हैं बच्चे के रूप में, मैं तो खुशी से पागल हो गया। वाह क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात है, इतनी खूबसूरत बात है। तभी तो जब हम वहां पर नहाए, जब हमने उसका पानी पिया, जब हमने सिर पे छींटे, तभी तो ऐसा लगा था जैसे अभी भी नए नए सिरे से गर्भ जून से निकल गया, ऐसा लगा, इतनी पवित्रता महसूस हुई थी मुझे। फिर गंगोत्री तक आते हैं, गंगोत्री तक आते आते टीडीएस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, परंतु पीएच लेवल उतना ही रहता है। हमारा टिहरी तक आते आते पीएच लेवल भी थोड़ा सा ऊपर 7-8 के आसपास चला, बट नॉट बैड, दिस इज ऑल्सो वंडरफुल, यू ड्रिंकेबल। बेशक टिहरी और बीच में जो दूसरे सिटीज एक और है, उत्तरकाशी है, उसका गंदगी, उसके नाले, उसके परनाले, जो कुछ भी है उसके अंदर है, इवन देन इट्स ड्रिंकेबल। और मिनरल लेवल तो पूछिए मत, कितना खूबसूरत है ये तो।
जवाब ही नहीं है। मैं अभी फिर डॉक्टरी की तो केमिस्ट वाली बातें शुरू हो जाएंगी हमारी, मैं अगर केमिकल्स गिनने शुरू करूंगा, ठीक है? तो वो सारे हमारे पास डिटेल्स हैं, मैंने वो सारी डिटेल करी। जब मैं सेकंड टाइम गया था, पहली बार नहीं, पहली बार तो लामास जी के साथ गए थे, तो लामास के साथ गए थे, तो जब दूसरी बार 2015 में गए हम लोग, तो वहां से पानी लेके आए, वहां से सब कुछ हमने लगभग 60 लीटर पानी लेके आए, आज भी रखा हुआ है घर में। हम्म। तो वो पानी का टेस्ट ये वो सब डॉक्टरों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, हमारे जो कॉन्टेम्पररी वेज हैं सब, उसके साथ उसकी तुलना की, और संसार के सभी पानियों के साथ उसकी तुलना करके देखी, तो कोई भी वैसा नहीं निकला ओके। गंगा के जैसा पानी। उतनी खूबसूरती नहीं थी किसी भी पानी में। और एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि गंगा का गौमुख का जो पानी है, उसको अगर आप हमारे यहाँ क्या होता था, शंकराचार्य जी ने ये बताई थी, जो पहले शंकराचार्य जी थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा था कि इससे अगर जो, जब बच्चा पैदा होता है तो जो नाड़ुआ जब उसका काटता है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड को जब काटते हैं, तो उसको अगर धो दिया जाए इस गंगा जल से, तो माता को कभी भी इन्फेक्शन नहीं होती है किसी भी तरह की, कोई टेम्परेचर नहीं आता, कोई बुरी इन्फेक्शंस कभी किसी तरह की भी नहीं आती। ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका था, इसलिए फिर कावड़िया बनाए थे जो जगह जगह गंगा पानी लेके जाएंगे। हर गांव के अंदर गंगा पानी मिलता था, शिवालयों के अंदर। अब मैं जब पहुंचता हूँ टिहरी पे, तो अभी बांध बना दिया है इन लोगों ने, बांध बना के एक बड़ी लेक बन गई है अभी जो रिसेंटली, तो पहले तो नहीं थी जब मेरी पहली यात्रा हुई थी। पहले तो वो जो ट्रैक था हमारा, उससे 2 किलोमीटर नीचे नदी बहती थी, पतली सी छोटी सी, और बड़ी तेज आवाज करती हुई, शोर करती हुई। छोटे छोटे गांव थे, बगीचे थे, बड़े सुंदर सी जड़ी बूटियां, और एप्पल ट्रीज, देन बड़ी सारी वेजिटेशन दुनिया भर की, देन कई तरह की हमारी बेसिल्स एंड और स्टीविया एंड सो फोर्थ, बहुत कुछ था वहाँ पर, इतनी सारी था कुछ हमारा। और सड़क भी बहुत टूटी फूटी होती थी तब, जब पहली बार गया था। सेकंड टाइम तो हमारी गाड़ी सीधी सीधी वहाँ पर गंगोत्री तक गई थी, तो हमारी, हमारे क्रू की गाड़ियां भी वहां पहुंची, हम भी पहुंचे वहां, दुनिया पहुंचती है अब गंगोत्री तक। और प्लास्टिक, गंदगी, दुनिया भर का सामान, ये सब कुछ हमारे गंगा के अंदर पहुंच चुका है, और दूषित हो चुकी गंगा टिहरी तक आते आते हैं। और टिहरी तक आते आते जब देवप्रयाग पहुंचते हैं, तो वहां से फिर अलकनंदा आके मिलती है, और मंदाकिनी भी मिल जाती है पहले थोड़ा सा, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिल जाती है, उसके बाद वो नदी मिल जाती है। तो वहां तक आते आते भी ठीक है, नॉट वेरी बैड। परंतु गंगा का जो एक्चुअल, जो गंगा का पानी जो था, जो 100% आता था, अब सिर्फ 10% आता है, क्योंकि बांध बन गया वहां पर, वो डैम बन गया है, वो डैम की वजह से सिर्फ 10% पानी आता है। तो इन्हें वे गंगा का पानी नहीं है उसमें। अब अलकनंदा का पानी ज्यादा है। जब हम ऋषिकेश पहुंचते हैं तो अलकनंदा का पानी ज्यादा है, गंगा का पानी 10% सिर्फ। सो इन ए वे आई कैन से गंगा नहीं है। गंगा को भागीरथी कहते हैं पहले, ऋषि के अपने देवप्रयाग तक, देवप्रयाग में आके शंकराचार्य जी ने उसका नाम डाला था गंगा। तब गंगा बहती हुई कानपुर पहुंचती है जी। फिर तो आपको पता ही है कानपुर में क्या होता है। कानपुर में बड़ी टैनरीज है, बड़ा मीट का व्यापार है लंबा चौड़ा, वो सारा कुछ उसके अंदर है। उसका पीएच लेवल पता क्या है, मेजरमेंट में आ नहीं रहा। हमारी मेजरमेंट तो 9-10 से ऊपर होती नहीं है पीएच की, वो तो है नहीं ना, उससे ऊपर तो होती नहीं है। अब ऊपर तो फिर जितना मर्जी कर लो। देन टीडीएस लेवल सर इन not less than 5,000, 4,000. My God. Poison. Basically poison. Then minerals,
सर मिनरल्स तो नहीं है, जहरें बहुत तगड़ी खासियां हैं ना? उसके अंदर आप क्रोमियम, ये वो, दिस दैट, सारे मैं 15-20 नाम ले सकता हूँ जो इंसान को कहीं का ना छोड़े। अगर पी लें तो यहाँ तक है कि वहां पर जो लोग, आसपास के लोग जो पीते हैं, श्रद्धा से पी लेते हैं पानी, जब पी ही रहे हैं लोग वहाँ पर, विलेजेस के लोग सब, उनके ऊपर अब एंटीबॉडीज ऐसी बन चुकी हैं कि कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। और जल्दी जल्दी कोई कोरोना भी काम नहीं करता है, ये भी बता दूं साथ की साथ। वो भी डर गया। दैट्स वाई ये कोरोना शहर के अमीर लोगों को ज्यादा हो रहा है, ये हमारे विलेजेस में नहीं है साहब। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गंगा के किनारे खास तौर पे नहीं है, क्योंकि जितनी इतनी जहरें जो लोग पी चुके हैं, वो उनको क्या करेगा बेचारा कोरोना, है ना? और क्या करेगी कोई जहरें, जो करना है कर लो इस देश को। अच्छा ही होगा ना, चलो ये भी अच्छा हो गया ना। अगर गंगा का शुद्ध पानी पीते होते तो कोरोना मार लेता, शायद नहीं भी मारता, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी बहुत बड़ी बहुत होती अच्छी। है। इम्यूनिटी हमारी बहुत खूबसूरत होती है जब हम अच्छा पानी पीते हैं तो, क्योंकि पानी का शरीर है, शुद्ध होना है, शुद्ध पानी पिएंगे तो शुद्ध होगा। शरीर शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो तन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो धर्म शुद्ध होगा, शुद्ध होगा धर्म कर्म, तो ये संसार सुख सागर होगा ही ना फिर तो। सर आप जब इसलिए ये पानी का लोकेशन, शुद्ध होना तो ठीक ही है। इतने सारे लोकेशंस आप ट्रैवल करते हो तो अपना किट लेके आना, आपका प्रेफरेंस, सिद्धार्थ जी का प्रेफरेंस क्या है? आप लोकेशन में पेंट करते हो या आप इमेजिनेशन कैप्चर कर लेते हो और बाद में आके आप अपना आर्ट पेपर के कैप्चर करते हो, या कैसा रहता है मतलब? मैं तो पूरे क्रू के साथ चलता हूँ आजकल। जब मैं इस तरीके के प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं क्रू के साथ चलता हूँ। लाइक मेरे साथ एक स्टिल फोटोग्राफी तो मैं खुद करता हूँ। ये अल्फा 7 बहुत ही कमाल की चीज अभी आ गई है, जो सोनी का जो अल्फा 7 आया है, 2 अल्फा 7 2 एस एंड आर, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द प्राइम लेंसेज के साथ मैं वॉक करता हूँ ना। तो प्राइम लेंसेज, सारे किस्म के प्राइम लेंसेज है। मेरी किट लगभग इस वक्त 1.5 करोड़ की है दैट वे। तो वीडियो भी उस पे होता है ना, अल्फा 7S पे, है ना। और आर पे मैं स्टिल शूटिंग करता हूँ। फिर देन हमारे पास ये गोप्रो भी होते हैं, पानी में छोड़ने वाले कैमरास भी होते हैं। और छोटे वीडियोस, 4K वीडियोस कैमरास भी आ गए हैं। देन बड़ा कुछ है आजकल, टेक्नोलॉजी तो कमाल है। देन कंप्यूटर, ये लैपटॉप लेके चलते हैं हम लोग, जो रिसेंट प्रो जो आ गए हैं मैक के, तो वो लेके चलते हैं। और मैं ड्राइंग्स भी करता हूँ, मेरे साथ मेरे असिस्टेंट चलते हैं जो मेरे लिए पेपर और कैनवस लेके चलते हैं, और हमारे बोर्ड जो जहाँ भी हम होते हैं वहाँ से ले लेते हैं। और मैं चारकोल की ड्राइंग्स और पेंसिल की ड्राइंग्स और वहाँ के लोकल मटेरियल भी उठा लेते हैं, मिट्टियाँ भी उठा लेते हैं, मिट्टियाँ सुखा लेते हैं समटाइम, वहीं की उसी एरिया की जड़ी बूटी भी उठा लेते हैं, वहाँ से भी रंग बना लेते हैं। ब्रशेस भी मेरे पास मेरे बैग में होते हैं, छोटा सा बैग है, पेन्स, ब्रशेस, एंड देन आई राइट माई डायरी एवरी नाइट। एंड देन हमारा जो वीडियो क्रू है, मेरे साथ एक बहुत ही प्रोफेशनल लड़का जो बॉम्बे से, ही इज अ फिल्म मेकर, बहुत ही यंग बच्चा पंजाब से है, तो बहुत ही इस वक्त प्रोलिफिक चाइल्ड, इज अ यंग बॉय, एंड वो मेरे साथ उसने वॉक किया है सारी गंगा के साथ, उसके असिस्टेंट्स को लेके साथ। तो इस तरीके से हम इक्विपमेंट के साथ चलते हैं। और हमने बहुत यात्रा जो है वो नाव में की, बहुत यात्रा हमने पैदल भी की, बहुत सी यात्रा हमने अपनी कारों में भी की है, एसयूवीज में भी की है, और ज़्यादातर पैदल और नाव में, और हेलीकॉप्टर से भी किया जब ऊपर के शॉट्स लेने थे हम लोगों ने। अब मैंने सोचा नहीं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऊपर से फिर से दोबारा, अभी मुश्किल भी है थोड़ा सा यात्रा करना, क्योंकि वहाँ जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पर अभी आजकल एंटर करने नहीं देते ऊपर से, नहीं तो शायद हम कर भी लेते, अभी भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई कैन वॉक एंड आई एम नाउ 64, सो आई कैन वॉक, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये तो कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए ना। तो परंतु फिर भी
वो गवर्नमेंट के कई सारे चक्कर हो जाते हैं, तो हमने फिर हेलीकॉप्टर से ऊपर से शूट किया था सारा, जो ऊपर का हिस्सा है दोबारा से शूट किया था। और बाकी सारा हमने फिर अपने ढंग से विलेजेस में गए, जगह जगह लोगों से बातें की, बड़ी सारी कथाएं हैं, बड़े सारे गीत हैं, बड़े सारे एपिसोड, बड़े सारी वेजिटेबल डाइज, बड़े सारे जानवर, बड़े सारे प्यारे दोस्त, बहुत कुछ मिला, इतना भंडार के मैं तो धन्यवादी हूँ इस संसार का, इस जीवन का। भर गए हम तो मेरे दोस्त, क्या बताएं आपको क्या क्या। और वहां तक गए, कलकत्ता से फिर आगे बनारस से होते हुए, कलकत्ता से होते हुए फरक्का और ये सब जितने भी हैं, देखो कितने कितने आते हैं उसमें, उत्तराखंड, देन यूपी, देन बिहार, देन आपका झारखंड का कुछ हिस्सा आ जाता है, फिर बंगाल शुरू हो जाता है। उसको क्रॉस करते हुए फिर हम लोग गंगा सागर, तो मुश्किल था बहुत, क्योंकि वो कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर एक बार क्यों? क्योंकि वो जब टाइड आई होती है समुद्र की, तभी आप उसके अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज आपकी नाव फंस जाती है, आप क्रॉस नहीं कर सकते वो जो, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है समुद्र के। तो वहां जाके गंगा मिलती है। तो वहां जब हम पहुंचे तो बड़ा खूबसूरत एक नज़ारा था वो। पहुंचे हम, बड़े अच्छी किस्मत थी हमारी कि उस दिन टाइड थी बहुत ऊंची आई हुई, कलकत्ता तक आई हुई थी गंगा के अंदर। और हम कश्ती लेके चल दिया, नाव लेके चल दिया, हम पहुंचे वहां। मैंने सोचा था ये अंतिम पड़ाव है, तो शायद वहां बड़े पंडे मिलेंगे, बड़ा कुछ होगा, मंदिर होगा, ये होगा, वो होगा, बड़ा कुछ होगा, बड़ा सारा सोच रखा था। परंतु वहां तो जैसे ही हम वहां पहुंचे, उतरे और पहुंचे गंगा सागर के जिस मेन स्थान पे, यहाँ जहां पर जाके गंगा मिलती है, वहां पर पहुंचे तो वहां पर तो कुत्तों की आवाजें आने लगी। जैसे जैसे पास हम चलते जाएं तो कुत्तों की आवाजें बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं। ये कमाल था, कुत्तों की आवाजें बढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं। ऊपर से देखा, नीचे समुंदर में गंगा मिक्स हो रही है, ऊपर से खड़े होकर देखा, हजारों की गिनती में डॉग्स, अलग अलग तरह के, और लोग उनको खाना खिला रहे हैं। वाओ, इट वाज वंडरफुल। क्या साउंड थी उधर से, समंदर का छल्लों की आवाज थी। समंदर अपनी एक संगीत बजा रहा था, इधर कुत्ते अपना गा रहे थे, बड़ा बीच बीच में बोलते थे। कभी झुंड का झुंड एक तरफ भागता था जहां जहां खाना मिलता था। पता चला कि ये कुत्ते बहुत ही, इनको बहुत प्यार करते हैं इस एरिया के लोग। ये इनके सेवियर्स भी हैं ये डॉग्स, क्योंकि इस एरिया में टाइगर है, इस एरिया में बहुत कुछ है, और वो डॉग्स इनके सेवियर्स हैं। विलेजेस में जो छोटे छोटे विलेजेस हैं उनके अंदर, जो जंगल के अंदर है, मैनग्रोव है सारा उस साइड में, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, बड़े वाले पेड़ भी हैं, बट मेनली मैनग्रोव है। तो वहाँ टाइगर होने की वजह से वो कुत्ते उनके सेवियर हैं, तो उनको वो फिर हर रोज खाना खिलाते हैं। वो सारे के सारे गंगा सागर पहुंच जाते हैं सुबह के टाइम में, इवनिंग में घरों घरों में चले जाते हैं। वैसे भी इसका संबंध कुत्तों का हमारे कपिल मुनि जी के साथ है। जो कपिल मुनि जी की कथा जो है, मिथिकल कथा, मैं अभी करने लगूंगा तो बड़ा लंबी हो जाएगी, परंतु थोड़ा सा लास्ट पोर्शन करता हूँ। कपिल मुनि जी एक ऐसे मुनि जी हैं जिन्होंने सांख्या योग के ऊपर बहुत काम किया है, और उन्होंने एक ऐसी चीज की डिस्कवरी करी जिसको हम माला कहते हैं। बहुत ऑर्थोडॉक्स लगती होगी ना हम सबको, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी ऑर्थोडॉक्स, क्या माला लेके घूमते हैं। सच भी है, क्योंकि माला का पता भी नहीं है कि माला का इस्तेमाल असल में है क्या। माला में 108 मनके हैं उसके अंदर, जो सांख्या योग की एक विधा है, जो ब्रीथिंग के साथ होती है। आप जब ब्रीदिंग एक अंदर लेते हो और एक मन का गिराते हो, फिर दूसरी आप एक बाहर छोड़ते हो। जब आप अंदर लेते हो तो संसार के साथ जुड़ते हो, जब आपका सांस बाहर जाता है तो आप संसार से टूट जाते हो। अगर पूरा सांस आप रोक दें ऐसे करके, तो एक मन का, उसके बीच में जो बीच का वक्त है, एक सांस आने और एक बचाने, हम गिराते हैं।
देखिए 4 सेकंड का हमारा ब्रेथ है। एक 4 सेकंड के ब्रेथ को जब काउंट किया कपिल मुनि ने, तो उसने धरती का सरकमफ्रेंस, चंद्रमा की दूरी, इंसान की लाइफ, उसके साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन, ब्रीदिंग के साथ उसकी इम्यूनिटी सिस्टम, उसका लिविंग सिस्टम, उसकी मेडिटेशन को जोड़ के ये वाला एक इक्विपमेंट, ये एक प्रॉप निकाला था अपने ही बालों को बुन के। ये प्रॉप जब उन्होंने निकाला था तो आज उसकी समझ नहीं है बहुत सारे लोगों को, सिर्फ शाइवाइट्स को है, कुछ कोजा बुद्धिस्ट को है, इसकी समझ है, बुद्धिस्ट को है, ये लामास को पता है, हमको इसलिए पता है, देन शाइवाइट्स को पता है, सिद्ध योगियों को पता है, नाथ योगियों को पता है, इन सबको पता है कि इसका मतलब क्या है, ये माला फेरने का मतलब क्या है। फिर इसके 112 मेडिटेशंस हैं इस एक प्रॉप के साथ। बैठ मेरे साथ कोई भी इस विषय पे डिस्कशन कर सकता है, साइंटिस्ट जो, स्पेशली कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये कंप्यूटर से भी तेज किस्म की चीज है अगर आप कैलकुलेशंस करना चाहें, जहां आप कोई दूरियां निकालनी चाहें, जहां आप कोई अपने इम्यूनिटी सिस्टम सेट करना चाहें, जहां आप अपनी सिंक्रोनाइजेशन विद मून एंड सन करना चाहें। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉप डिस्कवर्ड बाय कपिल मुनि जी। और उनके साथ रहते थे कुत्ते, जो उनके बहुत प्रिय थे। और कहते हैं कि उन कुत्तों ने जब आखिरी समय था, उन्होंने उनको मुक्ति के द्वार तक लेके गए थे, खींच के गंगा सागर तक लेके गए थे, और वहां पर उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो वो कुत्ते लेके गए, इसलिए आज कुत्तों की मान्यता इस वजह से भी है। ये एक मिथिकल स्टोरी भी हो सकती है, सच्चाई भी हो सकती है। I do not go into reality, not into myth, because myths are beautiful things. You can understand realism if you know myth properly. So I always say, my friends, as an artist, create your own myth. Only then you will be an artist. सही टॉपिक में वी हैव अ बैकग्राउंड साउंड आल्सो। तो मेरा कुत्ता भी बोल पड़ा। वही। वो तो घंटी बजे तो उसने करना कराना कुछ नहीं होता, जाके उसने दरवाजे के पास जरूर खड़ा है, खोलना तो क्या है, बेचारा छोटू सा है, इसको मैं हाइकू कहता हूँ। छोटू ये तिब्बतन स्पेनियल है। हाइक्यू अच्छा नाम है। हाइकू है उसका नाम। मतलब आप आर्टिस्ट हो बट पूरा टेक्नोलॉजी लेके घूम रहे हो आप, मतलब एवरीवेयर देयर इज टेक्नोलॉजी, एंड व्हाट आई हैव सीन इज यू बेसिकली हैव every subject covered, though your specialization is art, but you have covered social, you have covered all the sciences, all category of sciences, you have covered math. क्योंकि देखिए मैं एक मानता हूँ बात, हमारे यहाँ पहले कला चित्रकार नहीं हुआ करते थे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में क्या, सारे संसार में सिर्फ महर्षि हुआ करते थे, जो पहले सब कुछ को जान लो, फिर एक विधा में तुम अपने को जो करना है करते रहो, वो तो करते रहो, जो तुम्हारा एक विधा है, तुम्हारी जो तुम हो। जैसे मैं हूं तो चित्रकार, मुझे ऐसा तो लगता है, चित्रकार से भी ज्यादा अब तो मुझे ये लगने लगा कि मैं स्टोरी टेलर हूँ। आपका ऑरेशन बहुत अच्छा है, मतलब एंड इट इज वेरी सूथिंग, मतलब मे बी आपने जो मॉन्क का जो टेन्योर दिया है, इट इज वेरी सूथिंग एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेडिटेशन। So I generally get tired, मतलब जब टाइम होता है I generally get tired, but in the entire duration of this 1 hour, you know, it was very soothing. It was not, I mean, आपने हम लोग को सभी को टूर मतलब इंडिया टूर लेके आके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे यहाँ महर्षि हुआ करते थे, हमारे यहाँ ये नहीं था कि ये स्कल्प्टर है, ये पेंटर है, ये है। तो तभी तो इस एक कथा से बंद करता हूँ अपनी बात को आज की, अगर आप चाहें तो। या प्लीज, मैं इस बीच में वो पेंटिंग भी आपके जो कलेक्शन है वो प्ले करते रहूंगा, हम बात करते रहेंगे। So, जी या प्लीज। हे गुरु सिखा दो मुझे चित्रकला, कहा एक जिज्ञासु ने। तथास्तु, सिखा दूंगा, पहले मूर्ति कला सिखाओ,
मूर्ति कला वाले गुरु, मुझे मूर्ति सिखा दो, हे मूर्तिकार मुझे मूर्ति कला सिखा दो। सिखा दूंगा, पहले नृत्य कला तो सीख लो। हे नृत्यकार मुझे नृत्य का कुछ ज्ञान दो। अच्छा, सिखा दूंगा। क्या तुम्हें कोई संगीत का ज्ञान है? पहले जाओ संगीत सीख कर आओ। संगीत के गुरु ने बोला, मेरे जिज्ञासु दोस्त, जाओ पहले सुनना सीख लो अच्छी तरह से। पहले सुनना तो सीख लो। सुनना ही नहीं सीखा तो फिर कुछ नहीं सीख पाओगे, ना चित्रकारी, ना संगीत, ना स्कल्पचर, ना फिर पेंटिंग, ना कुछ। फिर जीवन भी नहीं सीख पाओगे। पहले सुनना सीखो। इसलिए मेरा बाबा नानक गाता है बहुत जबरदस्त, कहता है, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती धवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप। Only by listening properly you become one and anything you like. हम सुनते ही तो नहीं है, हम अपने अंदर अंदर बोलते हैं सारा कुछ। पहले हम यस नो करते रहते हैं, तो वाह क्या बात है। हम किताब भी वही पढ़ते हैं जो हमें लगता है, अरे अच्छा ये तो मेरे जैसा ही है, ठीक। हमें वही किताबें अच्छी लगती हैं, वही फिल्में लगती हैं जो हमारी जैसी होती हैं। हम वो नहीं सुनते जो हमारे जैसा नहीं। इसलिए बुद्धिस्ट कहते हैं, बुद्ध कहते थे, महाबुद्ध कहते थे, सुनो, डोंट से नो टू एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. So, last question. We've got a lot of appreciation, compliments for your talk. Last question. मैंने सुना आपकी जर्नी जो 2600 किलोमीटर्स की जर्नी को आपने आर्ट में भी you wanted to give the same measurement. Maybe you can just discuss that and then we'll end. या क्योंकि ये 2600 किलोमीटर का रास्ता है पूरा ही पूरा। पैदल चलें, जहाँ गाड़ी से चलें, जैसे भी चलें, पूरी नदी का जो मेजरमेंट है, वासुकी ताल से मैं इसका उद्गम मानता हूँ, वहाँ से शुरू हुआ। सभी लोग गौमुख से कहते हैं, सभी जगह हमने पढ़ा भी यही होगा, गौमुख से गंगा शुरू होती है। नहीं, गंगा तो असल में मानसरोवर से शुरू होती है, वहाँ से झरना बन के गिरती है, और वासुकी ताल से फिजिकली शुरू होती है, चलती है। तो वहाँ से भगीरथी चलती है और देवप्रयाग तक, उसके बाद उसका नाम गंगा हो जाता है। इसका टोटल 2600 किलोमीटर है। किताबों में आपको 2500 मिलेगा, 100 खा गए हैं बीच में ना, तो कर लेंगे करेक्ट, कोई बात नहीं। मेरी इस यात्रा के बाद करेक्शन होगी, तो क्योंकि मैंने अभी किताब लिख दी है, 400 पेज का ट्रैवलॉग लिखा है इस सारे विषय पे, जिसमें गंगा को 7 हिस्सों में बांटा, जिसमें मिथिकल गंगा, देन हैबिटेट अराउंड गंगा, देन पोइट्री एंड आर्ट अराउंड गंगा, and spirituality and all kind of things in vegetation and whatnot, industry around Ganga and pollution in Ganga mainly I have covered. फिर उसके बाद मेरी suggestions हैं, जो मैंने काफ़ी सारी suggestions लिखी हैं। गंगा पानी को साफ ना करो, अब नहीं रहने दो इसको, कुछ मत करो, नहीं करो इसको, अच्छी है जैसे ये नहीं होगी साफ, ये होनी नहीं, ये ऐसी बातें रह जाएंगी, होंगी नहीं। इससे अच्छा है कि इसका इस्तेमाल कर लें हम, क्योंकि ये कानपुर के बाद से एक ऐसी, इसके अंदर ये कंपोस्ट की क्वालिटी का पानी हो गया है। वाई नॉट टू यूज इट एज ए कंपोस्ट, एंड वाई नॉट टू मेक सम काइंड ऑफ, जैसे मैंने बिहार गवर्नमेंट को भी बात करी थी, मैंने उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मेरी बातचीत हो रही थी वाइल द ट्रैवलिंग, उन्होंने मेरी सहायता भी करी थी। अंजनी कुमार जी ने मेरी बड़ी सहायता करी, उन्होंने मेरे लिए नाव का प्रबंध किया, उन्होंने हमारे लिए इवन पुल हटाए बीच में रास्ते में से, जो बीच में आ जाते हैं ना, सारे कई जगह पे आते हैं, जो किश्तियों वाले पुल आते हैं, नाव वाले पुल आते हैं, उनको हटाया हमारे लिए, तो हमारी नाव को आगे जाने दिया, लाइक दैट। तो 1 घंटे में हटा के 1 घंटे में दोबारा से लगाया।
फूल को लगाया, तो उनकी बड़ी मेहरबानी हुई इस चक्कर में। तो उनसे बात हो रही थी कि क्यों नहीं एक कोऑपरेटिव बनाया जाए वेजिटेबल का, और गंगा के पानी की ऑर्गेनिक वेजिटेबल हम सारे संसार को दे सकते हैं। यूपी के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनको अभी रिटर्न में भेजा है कि क्यों नहीं हम जड़ी बूटी और कुछ एक ऐसी चीजें बीजें, जो मैंने 300 जड़ी बूटी और पेड़ों के नाम सजेस्ट किए हैं, जो हम ये यूपी के बेल्ट से शुरू होकर ऊपर पहाड़ तक लगा सकते हैं, और हमारे पास इतना बड़ा धन इकट्ठा हो जाएगा। और सड़क को थोड़ा सा दूर कर दो, सड़क को गंगा के किनारे किनारे मत चलने दो, तो आपकी आधी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आधी गंगा तो ऐसे साफ हो जाएगी। बाकी गंगा ठीक है, अब जैसी है वो इसको रहने दो, मत करो। हम तो यही कहते हैं लोगों को, इस पे पैसा भी मत वेस्ट करो। पैसा वेस्ट नहीं करो, उसका इस्तेमाल करके ये सारी वेजिटेशन और ये सारा कुछ लगाना शुरू करो, और इतने सुंदर ढंग से लगाओ, इतने बड़े लेवल पे लगाओ कि हम हैं ना, अब सब बताने वाले। कल नहीं होंगे हम, आज हैं, ले लो। यस सर, थैंक्स अ लॉट। मतलब बहुत सीखने के लिए मिला आपके डिस्कशन में। एंड ये जो आप कर रहे हो, मतलब यू आर पासिंग ऑन अ मैसेज, एंड दिस इज अ गुड थिंग। वंस यू बिकम फेमस, people are ready to listen to you. You will have the power to influence the policy makers. यस, एंड ये जो खाली आप आर्ट के द्वारा जो मैसेज पास कर रहे हो, गंगा, दैट वन सब्जेक्ट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. So thanks a lot for doing the social cause, taking up the social cause along with your art and influencing the policy makers. क्योंकि आप जब बात करोगे कोई ना नहीं कहेगा, and including public, general public. लाभ ये हो सकता है जो आपने कहा, हमारे आर्टिस्ट होने का इस समाज को फायदा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने बड़ी महंगे में चित्र बेच लिया। ये क्या हुआ कि जो महंगा बिक गया बड़ा आर्टिस्ट हो गया, ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज माय क्वेश्चन एज वेल सर। शायद मेरे दोस्त सोचेंगे इस विषय में कभी। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम अपनी कला को, हम अपने लिए तो खूबसूरती कर ही सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, सबके लिए, इस चराचर जगत के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, एंड रियली लाइक योर पैशन। आप जो इन डेप्थ में, मतलब ये ऑलमोस्ट गोद लेके एक बच्चे को पालने का मतलब, बिकॉज ऑल योर स्टडीज आर एटलीस्ट अ डेकेड ओल्ड, लाइक 7 to 8 years, 10 years of study, whether in Sikhism or monastery or Ganga. All these studies are at least 10 years. मतलब इसमें बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब स्कूल जाता है, उसकी मतलब ऑलमोस्ट 7th क्लास भी हो जाती है। मेरी बेटी देखिए म्यूजिशियन बन गई, वो म्यूजिकल थिएटर करने लगी, छोटी सी थी जब मेरे साथ पहली बार गई थी। तब 6 साल की थी सिर्फ। अभी वो लंदन में म्यूजिकल थिएटर करने चली गई, जब तक ये गंगा हुई है। तो मेरा भी स्टेटमेंट अभी चेंज कर दूंगा, प्यार करो तो सिद्धार्थ साहब से तरह प्यार करो। मतलब 10 साल इतनी so you're definitely a threat to शाहरुख खान, because मतलब आर्ट से या जो सब्जेक्ट्स आप ये कर रहे हो, I mean that is tremendous. I really love the color concept, the natural color which you use, and the message which you passed on. Though this was my last question, कि आप आर्टिस्ट को क्या मैसेज, बट इन द डिस्कशन कॉन्वर्सेशन इटसेल्फ यू हैव गिवन अ मैसेज टू। सिर्फ एंटरटेनर नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम एंटरटेनर नहीं है। यस, पेंटिंग को देख के आनंद तो आता ही होगा, ठीक है, एंटरटेन भी होता है बंदा, गैलरियों में जाता है, वहां पर दारू वारू भी चलती है, खाना पीना भी ठीक है ना, सारा कुछ सही है ना, लेट इट बी। बट वी आर नॉट ओनली एंटरटेनर्स, वी शुड गिव समथिंग टू द सोसाइटी, टू आवरसेल्फ, एंड प्रेम तो करना ही है ना। और अपने को माफ करके चलना ठीक है। Good one, sir. Thanks a lot. Thank you all the audience for following this, and thanks for Sneha Arts for giving this opportunities so that I could interact with. And sorry, friends, some of the comments due to technical issues did not pop up. But yeah, thanks a lot for Ajay, Reena, Akshar, Ankita, a lot of them. I am getting some screenshots of your compliments which I couldn't pop up. Thanks for watching and listening to this particular conversation. Thanks a lot for taking time out for this particular show, sir. Thank you. Thanks a lot. Namaskar. Thank you very much. Thanks to you as well. Thanks to everybody.
Thanks. Thanks.